اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت میں ٹرین میں ہوں اور راجستھان کے سفر سے جلگاؤں واپس لوٹ رہا ہوں۔ بذریعہ آواز آپ تک میں خبریں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ٹرین کی بوگی میں بیٹھ کر اے سی فرسٹ کلاس میں تھوڑا سا آواز باہر کا کم آ رہا ہے، تو یہاں سے ہی میں آپ کو آواز کے ذریعے سے خبریں پہنچا رہا ہوں۔ اس وقت انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ 97 سال کی عمر میں، یعنی 97 سال کی عمر میں مہاتیر محمد دوبارہ ملیشیا کے وزیر اعظم بننے کے منتظر ہے۔ مہاتیر محمد 2018 میں سب سے بزرگ معمر وزیر اعظم بن کر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جگہ بنا چکے ہیں، اور اب خبریں آ رہی ہے کہ دوبارہ وہ وزیر اعظم بننے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے ہفتے کے روز یعنی 5 نومبر کو عام انتخابات کے لیے اپنے امیدواری کے کاغذات جمع کرا دیے۔ سیاسی منظرنامے پر دوبارہ واپس آنے کی امید میں ان کا یہ اقدام ان کی آخری الیکشن کی دوڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ ملیشیا میں 19 نومبر کو قبل از وقت عام انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ یہ الیکشن اصل میں ستمبر 2023 میں شیڈول تھے۔ وزیر اعظم اسماعیل صابری یعقوب پر اپنی پارٹی یونائٹڈ ملیشین نیشنل آرگنائزیشن کی طرف سے شدید دباؤ تھا کہ وہ پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیں اور اپنی انتہائی کم اکثریت کو مضبوط کرنے کی امید میں قبل از وقت انتخابات کرائیں۔ مہاتیر محمد، جنہوں نے 2018 میں دوسری مدت کے لیے منتخب ہونے کے بعد سب سے زیادہ عمر کے وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کرایا تھا، وہ 19 نومبر کو ہونے والے الیکشن میں دوبارہ حصہ لیں گے۔ ناظرین، ایسے ہی دوسری بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیل سے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل میں اس وقت نیتن یاہو دوبارہ جیتے ہیں۔
नेतन्याहू की जीत की हमेशा तवक्को थी। बहरैन ने इजराइल से ताल्लुकात मुस्तहकम बनाए रखने का इशारा दे दिया। नेतन्याहू की जीत की हमेशा तवक्को थी। बहरैन जीत इजराइल से ताल्लुकात जारी रखेगा। बहरैन ने इजराइल में इंतहाई दाएं बाजू की जमात लिक्विड पार्टी की इंतखाबी जीत के बाद ऐलान किया है कि बहरैन नेतन्याहू की कामयाबी के बाद भी इजराइल के साथ ताल्लुकात जारी रखेगा। ये बात बहरैन के बादशाह के सिफारती मुशीर ने शेख खालिद बिन अहमद ने कही। नेतन्याहू की इंतखाबी कामयाबी के बाद ज्यादा अरब मुल्कों की तरफ से खामोशी जाहिर की गई। ताहम बहरैन जिसने हालिया बरसों में ही इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं, इसकी तरफ से न सिर्फ ये बयान सामने आया बल्कि ये भी कहा गया है कि नेतन्याहू की जीत मामूल की तरह हमेशा मुतवक्के थी। मैं आपको बता दूं कि शिया इस्लामी शनाख्त के हामिल ईरान के बारे में नेतन्याहू के सख्त मौक़िफ़ ने सुन्नी अरब रियासतों के इजरायली ताल्लुकात की इस्तवारी में काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। नाज़रीन, इस वक्त ईरान से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि ईरान में लगातार अब यूं समझिए कि 2.5 महीना मुकम्मल होने वाला है। मुजाहरे, आंदोलन, एहतजाज थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पुलिस हिरासत में एक खातून अमीनी की मौत के बाद ईरान में एहतजाज शुरू हुए और पूरे ईरान में तशद्दुद होने लगा। ईरान में इन मुजाहिरों में बाकायदा पुलिस की झड़पों में हुकूमती आला अफसरान के साथ आवाम की हलाकतों की खबरें सामने आ रही है और अभी खबरें आ रही कि 304 के करीब मरने वालों का आंकड़ा पहुंच गया है। ऐसे ही बहरैन ने इजराइल से ताल्लुकात मुस्तहकम बनाए रखने का इशारा दे दिया है। ईरान में मुकन्नना, इंतजामिया और अदालती हुक्काम के सरबराहान ने हफ्ते के रोज उन अनासिर की फाइलों की जांच और सजा को तेज करने का मुतालबा कर दिया जिन्हें उन्होंने हालिया जारी एहतजाजी मुजाहिरों के तनाजुर में फसाद परस्त करार दिया था। ईरानी न्यूज एजेंसी ने बताया कि मुल्क के सदर इब्राहिम रईसी, पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर और अदलिया के सरबराह मोहसिनी ने एक मुलाकात में तकसीम की साजिशों का मुकाबला करने के लिए होशियार रहने की जरूरत पर जोर दिया है। दूसरी तरफ हफ्ते के रोज ईरानी इंसानी हुकूक की तंजीम के डायरेक्टर महमूद अमीरी मुकद्दम ने ऐलान किया कि मुल्क में मुजाहिरों के मकतूलीन की तादाद 304 से ऊपर पहुंच गई है और उन्होंने ये भी कहा कि गुज़िश्ता सितंबर से शुरू होने वाले मुजाहिरों के आगाज से अब तक 41 बच्चे 41 चिल्ड्रंस और 24 लेडीज 24 खवातीन को मारा जा चुका है। उन्होंने कहा कि जुमा के रोज सुबह सिस्तान और बलूचिस्तान में कम से कम 16 मुजाहिरीन मारे गए हैं। नाज़रीन, ऐसी बड़ी खबर इस वक्त में इंडिगांव के सामने आ रही है कि मगरिबी किनारे में इजराइली गाड़ियों पर पथराव करने वाला फलस्तीनी शहीद हो गया। एंथोनी ब्लिंकन ने इजरायली वजीर आजम और फलस्तीनी प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास से तशद्दुद में इजाफे पर अपनी तशवीश का इजहार किया। मकबूजा मगरिबी किनारे में 5 नवंबर को इजरायली फौजियों के साथ झड़पों के दौरान एक फलस्तीनी लड़के को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इजरायली फौज ने कहा कि उसके फौजियों ने उन लोगों पर गोलियां चलाई जो एक सड़क पर इजरायली गाड़ियों पर पथराव कर रहे थे और ये कि जख्मियों की तस्दीक भी हो चुकी है। दूसरी तरफ फलस्तीनी वज़ारत सेहत ने ऐलान किया कि 18 साला मुसअब मोहम्मद महमूद
गांव के करीब काबिज फौज की गोली लगने के नतीजे में शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। एक और फलस्तीनी इजरायली फायरिंग की जद में आकर जख्मी हो गया। गुज़िश्ता महीनों के दौरान मगरिबी किनारे में इजरायली फौजियों और फलस्तीनियों के हमलों के जवाब में सहयूनी फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर रखा है। फलस्तीनी अपनी आज़ाद रियासत के क़याम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जानिब इजराइल उनको पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से दबाने की कोशिश में मसरूफ है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जनूबी अफ्रीका से। जी हाँ, जनूबी अफ्रीका में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की जिसमें 6 लोगों के हलाक होने की और एक शख्स के जख्मी होने की खबरें आ रही है। दाद खाज खुजली का जल्द से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।